Students, let's start with our session. Students, last time I think we did till hydroboration oxidation, right? Hydroboration oxidation तक हमने किया था last time. Yes, all of you, can you hear me? Yes, sir. हाँ. Hydroboration oxidation तक हमने कर लिया था last time. Please confirm. Yes, sir. Okay, Yes, very sir. good. So let us move ahead. उसके आगे जाते हैं. But before I move ahead, as you all must be knowing, हमने ऑनलाइन एकेडमिक वॉरियर अवार्ड हमने अनाउंस किया था कैश 25 साइंस एकेडमी ने. सो उसका प्रोफेसर को कंफर्मेशन कॉल जाना शुरू हो चुका है. हाउ मेनी ऑफ यू हैड नॉट filled that form, students? ऑनलाइन एकेडमिक वॉरियर, ऑनलाइन एकेडमिक वॉरियर का फॉर्म किस किस ने नहीं फिल किया था? हाउ मेनी ऑफ यू हैड नॉट फिल्ड दैट फॉर्म? Okay, any of you. ठीक है. So what we will do is quickly first let us get this done. मैंने आपको ग्रुप पे एक लिंक भेजा है. जिसने नहीं फिल किया था, immediately students please fill the form. Now first listen to me. Switch on your camera first of all. All of you switch on your camera. Switch on your camera. Others have filled. तिशा, आर्यन, ऋत्विक, आप सबने फिल कर दिया है. सुयश, Yes, sir. नहीं फिल किया है. ठीक है. सो एक बार ये फॉर्म चेक कर लो. आपके ग्रुप में मैंने फॉर्म सेंड किया स्टूडेंट्स. पहले समझो ये फॉर्म किसके लिए. ठीक है, पहले वो समझ लो. आपके जो स्कूल टीचर्स थे, आपके 10th स्टैंडर्ड के टीचर्स, स्कूल के टीचर भी चलेंगे, प्राइवेट ट्यूशन होगा तो वो टीचर्स भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये अवार्ड है जो कैश 25 साइंस एकेडमी उन टीचर्स को देना चाहता है जो आपको लगते हैं कि उन्होंने आपके प्रोग्रेस में हेल्प किया, आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको प्रॉपर्ली गाइड किया ये पूरे कोविड के वक्त. ठीक है. एंड आई एम श्योर कि आपको ये भी लगता होगा कि ये आपकी जूनियर्स को भी आप उसी तरह से वो टीचर्स गाइड कर रहे होंगे. सो उन टीचर्स के लिए दिस अवार्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड वी So I'll add ketones, carboplatinum. How we will start, students? This is the way you have to approach. First, you try to identify, you try to differentiate between aldehyde and ketone. How to identify the functional group? That is very very important. ठीक है रोहित? So aldehyde कैसे दिखेंगे? Aldehyde के पास C double bond O होगा, and additionally the same carbon will have one H also. And plus third last valency, sorry third नहीं, fourth valency जो होगा that will be pending. So this is aldehyde group. Understood? Now if I start adding carbons over here, you just have to count the carbons and alkane का E निकाल के al डालना है. ठीक है. Let us see how. Suppose I have CH2 and CH3 over here. ठीक है. So how many carbons can I see, students? कितने carbons हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? 3 carbon. 3. कितने carbons दिखाई दे रहे हैं? 3. Correct है. 3 carbons दिखाई दे रहे हैं. So let us see 1, 2, 3 है ना. So नाम क्या है इसका? नाम है इसका प्रोपेन. एंड प्रोपेन का E निकाल के I will have to put अल, तो बन जाएगा प्रोपेनल. क्लियर है? क्या बन जाएगा? प्रोपेनल. This is understood? Is this understood? Yes, sir. Yes, रोहित. नेक्स्ट कीटोन कैसे करूंगा मैं? कीटोन भी सेम पैटर्न में चलेंगे. Try to identify the functional group first. So this is ketone. ठीक है, ये है ketone. Check कर. This is ketone. Now ketone में दोनों तरफ I will see carbons. Ketone में both the sides I will see carbon. एक भी साइड पे H नहीं होगा रोहित. एक भी साइड पे कार्बन. This is known as carbonyl carbon. देख, this is known as carbonyl carbon. ठीक है, carbonyl carbon. Carbonyl carbon पे if directly H is attached, it is surely aldehyde. Surely aldehyde. But if carbonyl carbon पे H directly attached नहीं है, that means it is surely a ketone. अगर दोनों साइड कार्बन्स हैं
मतलब ये कंफर्म कीटोन है, ये CH3 एंड CH3. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? हाँ, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन प्रोपेनोन. कैसे? काउंटिंग कर, 1 2 3. ठीक है, तो इसका नाम ले लेंगे प्रोपैन 2 ओन. प्रोपैन 2 ओन, प्रोपेनोन. ओके, Yes, दिस इज sir. क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. स्टार्ट करें आगे का स्टेप में, Sir. आगे का रिएक्शंस. यस Sir, can you explain about once again about hydroboration oxidation of alkene? hydroboration oxidation of alkenes. Let us do it once again. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन. स्टूडेंट्स पहले रिएक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन oxidation of alkene. So that means overall 2 steps are going to be there. Overall 2 steps are going to be there. All of you switch on your camera. जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, सबके सब कैमरा ऑन कर लो. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. हाउ शैल आई स्टार्ट स्टूडेंट्स? कैसे स्टार्ट करूं मैं? बहुत ही सिंपल है. कैसे मैं करूंगा? आई विल टेक एन एल्कीन. एग्जांपल लेते हैं, सपोज सिमेट्रिकल तो आप आसानी से कर लोगे, सो जानबूझ के आई विल टेक एसिमेट्रिकल. ठीक है, सो एसिमेट्रिकल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे डाइबोरेन. क्या ऐड करेंगे? डाइबोरेन. BH3 एंड देन ट्वाइस. अंडरस्टूड? BH3 एंड देन ट्वाइस. डाइबोरेन हमने ऐड कर दिया, डाइबोरेन ऐड कर लिया अपन ने. अब इसको क्या करेंगे? When it starts reacting, जब ये रिएक्ट करेगा, स्टेप का नाम समझ पहले. स्टेप का नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन. मतलब हाइड्रोजन एंड बोरॉन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन हमको ऐड करना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस. Because it is following anti-Markovnikov. You have to remember this follows anti-Markovnikov pattern. So गरीब वाले कार्बन पे मैं क्या दे दूंगा? गरीब वाले कार्बन पे क्या दे देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से? गरीब वाले कार्बन पे क्या आएगा? H आएगा. वेरी गुड, H आएगा. एंड अमीर वाले कार्बन पे आएगा B. इज दिस अंडरस्टूड? इस पे आ जाएगा B. नाउ लेट अस बैलेंस. ठीक है, डाइबोरेन. सो सॉरी ठीक है, डाइबोरेन में how many borons can I see? I can see total 2 borons. करेक्ट है. सो उन 2 borons को बैलेंस करने के लिए I'll write 2 over here. जैसे यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो ये पार्ट 2 हो गया. इज दिस क्लियर? ये पार्ट 2 हो गया. नाउ ये ब्लू वाला हाइड्रोजन कितना है ऊपर अपने पास? ये चेक कर. 6 है टोटल. 2 into 3 6. 2 into 3 6 है. करेक्ट है. सो इसको 6 बनाने के लिए what I'll do? I'll put this part inside the bracket. ये अल्काइल पार्ट में ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे I'll put 3. समझ में आया इतना आदित्य? ये पार्ट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो 2 into 3 becomes 6. सो ब्लू हाइड्रोजन का भी टेंशन मुझे चला गया. बट अब नया टेंशन आ गया. क्या नया टेंशन आ गया? कार्बन चेन जो है, नाउ कार्बन चेन इज 6 times. So what I'll do is I'll put 6 over here. Understood? So 6 times alkene plus diborane gives me trialkyl borane. क्या मिल रहा है मुझे? Trialkyl borane. I had discussed this during the last lecture also. अगर मैं आदित्य को ये दे दूं twice of H2, तो इसका नाम क्या देगा आदित्य? 2 molecules of H2. वेरी गुड. 2 molecules of water. राइट है. अगर मैं नाम पूछूं खाली तो what you'll say? You'll say water है ना? water है. बस मैंने molecules नहीं पूछा तो you'll say water. Similarly, name of this compound would be, I will say trialkyl borane. And specific नाम क्या होगा? Tripropyl borane. That will be specific name. Correct है? Tripropyl borane, or else I'll say 2 molecules of tripropyl borane. 2 molecules of tripropyl borane. ठीक है? Is it clear? चलो शाबाश. Yes, sir. आगे चलते हैं. ठीक है, let us move ahead. Let us move ahead. तो इसका स्क्रीनशॉट, if you want you can take screenshot of this.
Then what I'll do is इसके आगे मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन. ठीक है, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन. So step 2 would be CH3 CH2, वो जो नीचे H था उसको मैंने कंबाइन कर दिया. So now I can write CH2, है ना. Then CH2, ये अभी अभी अपने पास था, ये सारी चीजें हमारे पास हैं अभी, है ना. यहाँ पे हमने लिखा था 2, यहाँ पे हमने लिखा था 3, and now next step would be oxidation. So I'll treat it with H2O2, peroxide effect in presence of a base, in presence of a base. तो क्या बन जाएगा आंसर, CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा OH, ओके, प्लस BOH thrice. ठीक है, BOH thrice. खत्म. That's it. Over here you can balance, this is 6 times. Over here also you can write this is 2 times. ठीक है, इतना क्लियर है ये? Is this clear? Still all of you have not switched on your camera. I am going to remove you immediately from the meeting. ठीक है? I'll remove you immediately from the meeting. जबरदस्ती मुझसे ये काम करवाओ मत. So do not keep on switching off your camera again and again. I'll not repeat this now. I'll immediately remove you from the meeting. Then आराम से recording check करना ये लेक्चर का. जब recording upload होगा आराम से recording देख लेना, ठीक है? Okay, Mitesh, can you hear me? Mitesh, Kavya Vasani, Ashna Taylor. So I have written my reason in chat box. Can you please check it? You have written your reason. Okay. ठीक है. What about others? Kavya Vasani, what about you? कैमरा क्यों ऑफ कर रहा है बार बार? Yes, Kavya. Switch on your audio. Yes, sir. कैमरा क्यों ऑफ था? ऐसे. एवरी लेक्चर में याद दिलाना पड़ता है तुझे, कैमरा ऑन कर. Sorry, sir. एवरी लेक्चर में ही होता है, अगले लेक्चर में नहीं होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज बिना वार्निंग दिए मैं निकाल दूंगा कि चल बाहर. You can talk to Ishita ma'am, you can talk to Neerav sir then. Okay? Who else is there with camera off? Chalo, let us move ahead. Haber-Bosch oscillation done, students. We are going to go into the next reaction. And next reaction कौन सा है? Alkene segment में वापस चलेंगे. Alkene section, hydroboration oxidation. Yes, polymerization, hydroxylation and then oxidation. शाबाश. चलो पहले करते हैं polymerization, ठीक है? Let's start with polymerization. What is polymerization, students? Polymerization मतलब किसी भी एक चीज का multiple copies बनते रहना, ठीक है? Yes, Ruchit, make sure I don't have to remind you. ठीक है? Abdullah Khan, कैमरा इज ऑफ. क्या हो गया? ऑडियो ऑन करो. यस सर. कैमरा ऑफ क्यों हो गया था? सर वो अपने आप ब्लैक हो गई थी इसलिए. अपने आप ब्लैक हो गया. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. यस, चलो
So what we are going to do is we are going to do polymerization students. Polymerization में क्या होगा, एक मोनोमर लेंगे हम एंड वो मोनोमर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करते जाएंगे. दैट इज पॉलीमर. मोनोमर, polymer. What do I mean by polymer? Many. What do I mean by polymer? Many. Lines से बहुत सारे copies होंगे, एक ही चीज के बहुत सारे units. For example, if I give you 1 rupee का coin, ठीक है? So 1 rupee plus 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 1 rupee ऐसे करते 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 ये जो बड़ा सा चेन बन गया, इसको आप बोलोगे polymer of 1 rupee coin का polymer एक बन गया मेरे पास. ठीक है, समझ में आया? So वैसा कुछ मैं अब यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ. ठीक है, रिएक्शन नाम मैं लिख देता हूँ. Polymerization students. Polymerization involves free radical formation. ठीक है, polymerization reaction involves free radical formation. पॉलीमर चैप्टर होगा पूरा आपको 12th स्टैंडर्ड में, पूरा पॉलीमर चैप्टर आने वाला है. तो यहाँ पे in this chapter you're going to see only one reaction. I'll try to make sure कि आपको टॉपिक समझ में आए, इसलिए मैं आपको 2 रिएक्शंस और दूंगा इसके अलावा. So overall 3 reactions, but you have to understand कि पॉलीमराइजेशन के लिए मोनोमर्स आर सिलेक्टिवली यूज्ड. कुछ भी मोनोमर उठा के कुछ भी पॉलीमर अपन नहीं बना सकते. ठीक है, सारे पॉलीमर्स यूज के ही आए ऐसा नहीं है, कोई कोई पॉलीमर्स का यूज होता है. तो जो बाकी पॉलीमर्स बचते हैं, ठीक है, वो हम ऐसे रैंडमली बचते कि अगर मेरे को सपोज रुचित पूछेगा कि मैंने इथीन का पॉलीमर बनाया, मैं प्रोपीन का बनाऊंगा, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, सबका नहीं बना सकते बिकॉज सबका जो पॉलीमर्स बनेंगे हर एक पॉलीमर यूजफुल है ये गारंटी नहीं है अपने पास. ठीक है, सो सिलेक्टेड पॉलीमर्स ही बनने वाले हैं. देयरफॉर इस रिएक्शन में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू कम योर वे. कोई ही रिएक्टेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन आई एम टेकिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2. What is the common name of this reactant, students? Reactant का common name? Yes, बोल आदित्य, reactant का common name? सर एक मिनट सर. Anyone else? Ethylene. Ethene. Ethylene is the answer. Ethylene is the answer. ठीक है, just a second. Let me remove this boy. Harsh. चलो, bye bye. Who else wants to get removed? हर्ष को तो हमने निकाल दिया. और कौन है? You switch off your camera. I'll remove you immediately. ठीक है? Okay, ठीक है. So ethylene I'll write over here on the screen, students. क्या लिखूंगा मैं स्क्रीन पे? I'll write ethylene. ठीक है? I'll write ethylene on the screen. Ethylene is the name. ETHYLENE. Ethylene. Okay. Now ethylene के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने? n number of molecules. n number of molecules of ethylene मैंने ले लिया. इसको मैं हीट करूंगा under high pressure in presence of oxygen so as to create radicals. ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से मैं रेडिकल क्रिएट करूंगा. एंड रेडिकल्स आपको भी पता नहीं है रेडिकल्स क्या है, वो आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन किया जाएगा केमिस्ट्री में. ठीक है, तो रेडिकल इस रिएक्शन में बनते हैं. हम रेडिकल नहीं बनाने वाले, जैसे आपको समझाने के लिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ. ठीक है, सो ये कंडीशंस हैं. कंडीशंस क्या क्या होंगे? ऑक्सीजन, हाई अमाउंट ऑफ हीट, देन प्रेशर, ये सब अप्लाई करेंगे. और हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, एक बॉन्ड, one bond will remain as it is while the other bond will break, students. तो दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. and I will divide that second bond हाफ हाफ दोनों कार्बन को दे दूंगा. चेक करो, ये हाफ दे दिया इसको, ठीक है, हाफ दे दिया इसको, हाफ दे दिया इसको. चेक करो स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड क्या किया मैंने? चेक करो, हाफ इस कार्बन को दे दिया, हाफ कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड. स्टूडेंट्स इस बॉन्ड को ब्रेक करके हाफ हाफ दोनों कार्बन में डिवाइड कर दिया. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? वेरी गुड. बट ऐसे हमारे पास कितने हैं हाफ हाफ? ऐसा करने के लिए मेरे पास कितने बॉन्ड्स हैं? n नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं. ये तो मैंने एक इथीन मॉलिक्यूल के साथ किया. ऐसे तो आपके पास कितने सारे इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट है ना? तो अगर आप सबके साथ ऐसा करोगे तो आपको कैसा दिखना चाहिए चेन? ये देखो, जस्ट आपके समझने के लिए आई एम ड्राइंग ओवर हियर विद डिफरेंट कलर्स.
सपोज दिस इज फर्स्ट इथीन मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड मैंने ब्रेक करके हाफ हाफ डिवाइड कर दिया. देन कम्स द अदर इथीन मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स. ये देखो CH2 CH2 dash. Then comes the blue one dash CH2 CH2 dash. ये समझा? ये समझ में आया है ना? Now what I'll do Yes, is sir. I'll try to link them. ये देखो ये दोनों बॉन्ड को can I connect because दोनों की वैलेंसी पेंडिंग है. Can we connect them? Can we Yes, sir. connect them? आसानी से अपन कनेक्ट कर पाएंगे because दोनों की वैलेंसी पेंडिंग है. दोनों की वैलेंसी पेंडिंग है. So we can connect them. चलो इनको कनेक्ट कर लेते हैं. चलो ये देखो इनको कनेक्ट कर लिया. Similarly, can I connect these two bonds, students? इन दोनों कनेक्ट कर लूं मैं. Yes, sir. चलो इनको कनेक्ट कर लेते हैं. ये देखो ऐसे. सो इस तरह से लाइन से इथीन मॉलिक्यूल सारे कनेक्ट हो जाएंगे and I'll get a chain of polymers, chain of many ethene molecules. many मतलब क्या? poly. many मतलब क्या? poly. समझ में आ रहा है? एक सेकेंड. As soon as you get removed, then सारे रीजंस आ जाते हैं. कैमरा ऑफ है, कैमरा प्लग कर रहा हूँ, कैमरा निकाल रहा हूँ. ठीक है, चलो समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया ये? सो ये जो अभी मैंने आपके सामने बनाया स्टूडेंट्स नीचे, दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ हाउ आई विल एक्चुअली राइट. ये देखो इस तरीके से आप एक्चुअली लिखोगे. ऐसे आप नहीं लिखने वाले. You will not write final answer like this. This was just to explain you. Final answer you write in this pattern, students. ये देखो क्या करूंगा मैं. Same unit I'll write. ये देखो same चीज मैं लिखूंगा. Only difference would be CH2 single bond CH2. ठीक है, single bond over here, single bond over here, and single bond over here. And now what I'll do is I'll put a bracket. एक bracket डाल दो ऐसे, नीचे लिख दो N. Understood? So वो जो आपने भी देखा ना ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, डिफरेंट कलर्स के इथीन मैंने बनाए थे. मतलब बार बार रिपीट क्या हो रहा था कि ना ऐसे इथीन मॉलिक्यूल वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. इथीन मॉलिक्यूल वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. करेक्ट है स्टूडेंट्स? करेक्ट है. सो देयरफॉर आई विल राइट ओवर हियर कि दिस इज माय रिपीटिंग यूनिट. ठीक है, दिस इज माय रिपीटिंग यूनिट. This is my repeating unit. And नीचे I'll just write n times. So it suggests that ethene molecules n times present है मेरे structure में. Ethene molecule n times present है मेरे structure में. Simple. ये हो गया आपका reaction. End of reaction. Now just a second. Just a second. Now मैं क्या करूँगा students? ये देखो इसका IUPAC नेम यहाँ पे लिख दूँ मैं. Ethene. Ethene. Yes. Then let us try to name the product. ठीक है, प्रोडक्ट का नेमिंग करते हैं स्टूडेंट्स. इथीन मेरे पास बहुत मल्टीपल टाइम्स है, बहुत बार है, मल्टीपल टाइम्स है. सो व्हाट विल बी नेम ऑफ द प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट का नाम मैं दूंगा, ये चेक करो स्टूडेंट्स, नाम चेक करो, पॉलीथीन. देखा आपने पॉलीथीन बैग्स तो हमको पता ही है ना, पॉलीथीन बैग्स. सो पॉलीथीन बैग कैसे बनते हैं चेक किया आपने? ये जो स्क्रीन पे आपके रिएक्शन है इस तरीके से बनता है. पॉलीथीन बैग जो आप बोलते हो, पॉलीथीन. दिस इज हाउ पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड. यस, नाउ आस्क मी. रोहित पूछ रहा डाउट. सर वो डबल बॉन्ड से हमने सिंगल बॉन्ड दो दे दिए इधर CH2 में. यस, ब्रैकेट के बाहर आने चाहिए कि अंदर आने चाहिए? ओके ओके, अंडरस्टूड. सो वो डबल बॉन्ड क्या करना है तुझे? डबल बॉन्ड ब्रैकेट के अंदर रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. समझा? मुझे खाली ये बताना है कि वो जो डबल बॉन्ड के अलावा जो अंदर सेगमेंट है वो सेगमेंट मल्टीपल टाइम्स दिखेगा तुझे मॉलिक्यूल, बस. ठीक है सर. हाँ पूछ. सर आपने पॉलीइथीन दिया है, लेकिन इथीन नाम दिया, लेकिन डबल बॉन्ड तो नहीं है ना सर? एकदम करेक्ट है, डबल बॉन्ड नहीं है. बट ये बना कैसे? पॉलीमराइजेशन क्या किसका किया हमने? हमने मल्टीपल मॉलिक्यूल्स कौन से लिए? इथीन के लिए.
therefore naming वैसे आता है polythene. It is a polymer formed out of ethene. ठीक है? अच्छा ओके सर, मतलब प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट पे जो हमारे पास रहेगा उसी हाँ। हमें ये कर पॉली ऐड करके करना है ना सर? ओके करेक्ट है, करेक्ट है. एंड तुझे ये भी जस्टिफाई करना जरूरी है अपने आप को कि ये हमने बनाया कैसे. सी does it make any sense if I say कि you take ethene molecules and just attach them? They won't be getting attached because their valencies are still satisfied with the help of double bond. So we'll have to break that double bond first if you want them to attach to themselves. आपस में if I have n number of ethene molecules and if I want them to attach with themselves, I will want them first to break the double bond ना. So हमने पहले क्या किया, हमने heat दिया, pressure दिया and radical formation हुआ. That I'm not explaining over here because mechanism is not there for you people. You will study Sir- this mechanism in 12th Sir, standard. in the anti-Markovnikov also radicals perform now when we are using reagent. Yes. Peroxide, Benzoyl benzoyl peroxide. It generates radicals. Correct है, एकदम correct है. एकदम correct है. ठीक है students? Is this understood? So mechanism Yes, part sir. आपको 11th standard में नहीं है. Mechanism part you're going to see in 12th standard where entire polymer नाम का पूरा chapter है जहाँ पे आप polymers ही बनाते रहोगे. अभी के लिए इस chapter में you're going to make only simple polymers. In fact, your textbook has given only one example, which is this, which I've written on the screen. So I hope आपने note down कर लिया है. I hope आपने note down कर लिया है. Yes, sir. Yes, sir. Okay, शाबाश. चलो आगे चलें. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. बहुत सिंपल वाला एग्जांपल लेंगे. ठीक है, एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लेंगे. चलो पॉलीमराइजेशन में वेट आई विल मेंटेन दीज कंडीशंस. अब आप ट्राई करना स्टूडेंट्स. ठीक है, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. सो याद रहे रिपीटिंग यूनिट पहले आपको बना के दिखाना पड़ेगा. एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर ओनली डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टूडेंट्स. ठीक है, ठीक है, ओनली डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस. बाकी कार्बन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल के साथ चेक करेंगे. let's take propene students. So CH3, ठीक है, CH3 then CH then double bond CH2. How many molecules I'll take? कितने molecules ले लूं प्रोपीन के, बताओ आप मुझे. n number of molecules ले लो. So I don't have space के मैं थोड़ा सा n ऊपर लिखा है. अब exactly बाजू में उसके लिखो. ठीक है, n लिख दिया मैंने. Now I am very sure only these carbons are going to participate. सिर्फ यही carbons participate करने वाले हैं bond formation में. These carbons are going to participate in the bond formation. ठीक है, चेक कर ले. चलो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स. So CH single bond CH2 हाफ हाफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दो. डबल बॉन्ड मैंने निकाल दिया बीच में से. सो हाफ इसको दिया, हाफ इसको दिया. करेक्ट है. CH3 कहाँ था? CH3 Yes. Can I say CH3 is not a part of double bond, so is not going to participate. तो उसको अपन साइड में कर देंगे. अपन बोलेंगे CH3 तू साइड में हट जा प्लीज, या ऊपर चला जा या नीचे चला जा. डोंट बी इन द स्ट्रेट लाइन बिकॉज स्ट्रेट लाइन में अटैचमेंट्स होने वाले हैं. स्ट्रेट लाइन में अटैचमेंट्स होने वाले हैं. सो फटाफट से हट जा, साइड में हट जा, साइड में हट जा, साइड में हट जा, है ना. तो CH3 कहाँ चला गया स्टूडेंट्स? CH3 कहाँ चला गया? यहाँ चला गया. CH3 ऊपर चला गया. CH3 क्लियर है. CH3 ऊपर चला गया. इतनी बात क्लियर? Yes, sir. Okay. So this is what, this is going to be my
रिपीटिंग यूनिट, मतलब ऐसे ही बहुत सारे लोग बनने वाले हैं. So how to form final product now? Write down this repeating unit again and just draw a bracket across them. ये पूरे यूनिट के across पर bracket draw करेंगे, 2 brackets draw कर देंगे and we'll write n at the bottom. ठीक है, तो चलो चेक करें, चेक कर लें. So this is how I'll write CH dash CH2 CH2, okay, then dash dash हमने bond बना दिया and then CH के ऊपर होता है CH3, then I'll write bracket bracket n times. That's it. What will be name? Polypropylene या polypropene. किसको ये बनाने आया बताओ मुझे. Raise your hand in the camera, students. Let me see how many of you could draw this. Very simple reaction, very simple reaction. You don't have to do anything else. You just have to draw repeating unit properly बना लेना है and then आपको सिर्फ repeating unit के across brackets डाल के n डाल देना है. That's it. That is your product. सर Yes, रोहित बोल. सर इसमें कुछ वो सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक एल्केन फॉलो नहीं करेंगे ना हम लोग? नहीं, कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं. ठीक है, ओके. एक और एग्जांपल दूं आपको, ट्राई करोगे आप? एक और एग्जांपल Yes. देते हैं. अगर अपन फंस भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो अभी जैसे मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स कि while producing polymers we take selective reactants. किसी भी रिएक्टेंट को किसी भी एल्कीन को लेकर आप बना नहीं पाओगे. समझ में आई बात? सो सिलेक्टिव रिएक्टेंट्स आपको लेने पड़ेंगे. बट इस केस में मैं आपको रैंडमली एक एल्कीन दे रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया है कि नहीं. जस्ट टू सी आप अटकते हो कि आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हो प्रोडक्ट. सर यस, बोल तो पाश. इसका नाम पॉलीप्रोपिलीन होगा ना? एकदम करेक्ट है. पॉलीप्रोपिलीन इज राइट आंसर. पॉलीप्रोपिलीन. मोनोमर पॉलीमर, मोनोमर पॉलीमर, प्रोपीन पॉलीप्रोपीन, प्रोपिलीन पॉलीप्रोपिलीन. अंडरस्टूड? ठीक है, चलो. सो आपका नेक्स्ट रिएक्टेंट है जो मैं रैंडमली दे रहा हूं. स्टूडेंट्स ऐसे कोई रिएक्टेंट यूज नहीं करते हैं पॉलीमराइजेशन में, बट स्टिल आई एम गिविंग टू यू. ब्यूट टू इन ट्राई कर लो एक बार. ब्यूट टू इन प्लीज ट्राई कर लो एक बार. ब्यूट टू इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. ठीक है, चलो अब इसका रिपीटिंग यूनिट मुझे बना के दिखाओ एंड देयरफॉर इसका मुझे फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाओ. ठीक है, चलो फटाफट से चालू हो जाओ. स्क्रीन पे जो लिखा है वो पहला वाला रिएक्शन है, वही मत कॉपी कर लेना. ब्यूट टू इन क्विकली, रेज योर हैंड वंस यू आर डन.
चलो स्टार्ट करूं, है ना? क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको ऐसा कुछ आना चाहिए था आंसर, चेक कर लो एक बार। आपका रिपीटिंग यूनिट होना चाहिए था ये, दिस इज गोइंग टू बी योर रिपीटिंग यूनिट, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी योर रिपीटिंग यूनिट, चेक करो, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर नाउ। सर यस, सर जो लास्ट वाला सीएच तो नीचे वाला तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। CS3 दोनों ऊपर हैं या एक ऊपर एक नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलेगा। किस किस को राइट गया, प्लीज रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। वेरी गुड, सोयश, धनश्री, श्रेया, रोहित, श्रेयस, सोहम, आशना, अक्षत, पार्श, मोहन, शाबाश। एनीबॉडी एल्स? तीशा, दर्शन, आदित्य, ऋत्विक, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुचित गोहिल भी राइट गया। रुचित, सेंड मी इमेज ऑफ योर रिएक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज, या कैमरा से दिखा, मुझे चलेगा, मोबाइल से दिखा दे। सर नाम क्या है रिपीटिंग के बाद, रिपीटिंग यूनिट के बाद का वो उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, इसका नाम मत लिख, मैंने बोला ना ऐसे कोई पॉलीमर नहीं होता, ये खाली तुझे सिखाने के लिए, देखने तुझे आ रहा है क्या मैंने रिएक्शन दिया, ठीक है? हाँ रुचित, डायरेक्टली कैमरा पे दिखा दे, चलेगा। नहीं नहीं दिख रहा है, आई कैन नॉट सी। एक काम कर, फोटो भेज, फोटो भेज। श्रेया सावंत, you also send me photo on the group. किया रिएक्शन किया? हाँ सर। हाँ भेज दे, फोटो भेज, जल्दी भेजो दोनों, श्रेया एज वेल एज रुचित। Polymerization reaction, सर इसका कोई नाम नहीं होगा ना? नाम नहीं होगा, इसका नेमिंग नहीं करना है, ठीक है? सर भेजा मैंने। हाँ श्रेया, शाबाश, वेल डन वेल डन। जल्दी जल्दी रुचित। ठीक है, बाय टाइम रुचित सेंड्स हिज इमेज, लेट अस प्रोसीड स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट रिएक्शन, दिस वाज पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन पे मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? हाइड्रोक्सिलेशन। चलो देखते हैं रिएक्शन को, देखते हैं एक बार। सो आई विल राइट ओवर हियर hydroxylation, hydroxylation of alkene, hydroxylation of alkene, ठीक है? हाइड्रोक्सिल मतलब क्या, कौन बताएगा मुझे? हाइड्रोक्सिल मतलब क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब विच ग्रुप? टेल मी, एनीबॉडी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ यस यस यस, OH ग्रुप है, इसका मतलब है OH ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या? OH। यस सर ग्रुप पे फोटो आया क्या? सर कभी कभार नहीं आता, मैं घूमते होता ना तो। क्या क्या? सर ग्रुप पे फोटो आया क्या? ग्रुप पे फोटो, ग्रुप पे फोटो आ गया, यस। सर कभी कभार मैं जूम में होता ना तो नहीं आता फोटो। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एन नहीं लिखा है रुचित, रिएक्टेंट में भी
N is missing, reactant में N is missing, product में भी N is missing. Reactant as well as product. Do not write N with the repeating unit. ठीक है, repeating के साथ N नहीं लिखना है, बाकी दोनों के साथ लिखना है. Okay, चलो. So hydroxylation पे आते हैं students. Hydroxylation means what? I have to add OH group. Okay, OH group मतलब hydroxyl group होता है. ये देखो यहाँ लिख देता हूँ. चलो. This is hydroxyl group. This is hydroxyl group. Okay. चलो. I'll move into this now. I'll take an alkene. Simple सा alkene ले लेते हैं. चलो. Simple सा alkene कौन सा है? I'll take ethene again. CH2 double bond CH2 double bond CH2 plus water, because we have to take dilute solution. Water plus oxygen. So ये oxygen कहाँ से आ रहा है? ये oxygen कहाँ से आ रहा है? So I will have to take an oxidizing agent. मुझे जरूर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो मुझे ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है. तो व्हाट इज द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स? अगर मैं पूछूं आदित्य को, आदित्य हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करेगा, तो आदित्य मुझे बोलता है टेक एन अल्कीन प्लस कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4. Cold dilute Potassium permanganate. alkaline, very good. Potassium permanganate, very good. Cold dilute and alkaline KMnO4. Cold dilute and alkaline KMnO4. and इसको हम बोलते हैं Bayer's reagent. कौन सा reagent है ये स्टूडेंट्स? ये है Bayer's reagent. Therefore, this test is also known as Bayer's test. Cold alkaline KMnO4, cold dilute alkaline KMnO4 is known as Bayer's reagent. Therefore, this test is also known as Bayer's test. But आपको दिख रहा है मैंने dilute लिखा है क्या? Arrow पे students check करो. Have I written dilute on the arrow? No. But instead of writing dilute, I have done something on this screen which will suggest the word dilute. कुछ तो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, देखो. Cold. नहीं. Dilute. Alkaline. नहीं. Dilute alkaline से सजेस्ट नहीं होता. पूरे स्क्रीन को चेक करो, पूरे स्क्रीन को. ऐसा मैंने क्या लिखा है which will suggest dilute conditions? H2O. Well done. Water. Understood. So अपने वाटर लिया है यहाँ पे, चेक करो. अल्कीन प्लस वाटर. सो मैंने अगर स्टूडेंट्स, अगर सपोज आपको एग्जाम में ऐसे आया, देखो ये कुछ भी आपको नहीं दिखाएंगे. ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया ना, सपोज ग्रीन बॉक्स आपको दिखाएंगे ही नहीं. सपोज दे विल जस्ट राइट अल्कीन एंड देन एरो पे दे विल राइट कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4. Still you will have to do this reaction. Because when I say dilute, it is understood water है. When I say alkaline KMnO4, it is understood कि oxidizing agent है. Oxygen देने ही वाला है. Therefore, ये oxygen तो already आ ही गया. Just to understand the reaction and represent it properly, we have written H2O as well as O. You will also have to write it. यहाँ तक लिख लिया सबने? Please copy this down. इतना please copy कर लो. Bayer's reagent please copy कर लो. Bayer's reagent students. जल्दी. सर ऑक्सीजन किसको हमको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं सर? Nascent oxygen. Yes. Correct. So, Bayer's reagent potassium permanganate के नीचे लिखना. Yes, cold dilute alkaline KMnO4. This entire thing is Bayer's reagent. ठीक है?
Yes, sir. चलो आई डिलीट दिस नाउ स्टूडेंट्स, ये डिलीट कर लेता हूं मैं. नाउ आई विल गो इनटू द रिएक्शन. बहुत सिंपल रिएक्शन है. प्लीज लुक एट द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली, आपको समझ में आ जाएगा. CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 and I'll get OH OH. चेक करो. That's it. Remember halogenation students? Halogenation याद आ रहा है आपको? Halogenation of alkene. क्या किया था हमने? Alkene plus Cl2 arrow पे CCl4. We used to add ClCl across double bond, है ना? डबल बॉन्ड कार्बन्स को हम दोनों कार्बन्स को हमने Yes, sir. ClCl दे दिया था. सेम पैटर्न, दोनों कार्बन्स को आपको देना है OH OH. Now tell me, when you did halogenation of alkene, प्रोडक्ट क्या था? कैटेगरी बताओ प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या था? उसको अपन क्या बोलते थे? Vicinal dihalide. Vicinal dihalide. Very good. Vicinal dihalide. So if adjacent carbons have halogens, we call the molecule as vicinal dihalide. If my adjacent carbons have OH OH, if my adjacent carbons have OH OH, like is in this case, I will call this structure as, such a structure is known as glycol. क्या बोलते हैं इसको? Glycol. याद रहेगा बात, है ना? If you want, you can write this in your book also, students. बुक में भी लिख के ले लो. बुक में भी लिख के ले लो. रोहित, कैमरा ऑफ है. स्विच ऑन योर कैमरा immediately. Yes. सर ग्लाइकोल का डेफिनेशन क्या बोला? हाँ, मैं वही बोलने जा रहा हूँ. So आपको बुक में लिखना है halogens on the vicinal carbons or the adjacent carbons लिख दो. Halogens present on the adjacent carbons is known as vicinal dihalide, है ना? उसको अपन बोलेंगे vicinal dihalide. Second point लिखो, hydroxyl groups present on the adjacent carbons. Hydroxyl group or groups present on the adjacent carbons, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकॉल. सर प्रेजेंट ऑन क्या बोले आप? एडजेसेंट कार्बन, पड़ोसी बाजू वाले कार्बन पे, नजदीक वाले कार्बन पे, इमीडिएटली बाजू, नजदीक भी नहीं, इमीडिएटली बाजू वाले कार्बन पे, उसको बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन. ठीक है, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका नेमिंग करें एक बार, कॉमन नेमिंग कर ले. बहुत सिंपल है कॉमन नेमिंग इज वेरी वेरी सिंपल. ये देखो ग्लाइकॉल तो बहुत सिंपल. पहले तो इसका कॉमन नेमिंग कर लेता हूं मैं. इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है इथिलीन. इसका कॉमन नेम क्या है? इथिलीन. ठीक है, देयरफॉर इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इसका कॉमन नेम बनेगा इथिलीन ग्लाइकॉल. इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इथिलीन ग्लाइकॉल. क्या बनेगा? इथिलीन ग्लाइकॉल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? इथिलीन will give you Yes. इथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, अलग अलग ग्लाइकॉल बनते रहेंगे आपके पास. सर इथिलीन और ग्लाइकोल के बीच में डैश में कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं. कॉमन नेमिंग है, चलेगा. इथिलीन ग्लाइकॉल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आयुपैक नेमिंग कर दो इसका. आयुपैक नेमिंग ट्राई करें एक बार इसका. अगर एक OH होता तो अपन क्या बोलते हैं? सपोज सिर्फ एक ही OH था तो अपन क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इथेनॉल. करेक्ट. इथेनॉल वही. यस. दो OH है तो हम क्या बोलेंगे? इथेन 1,2. इथेन 1,2 डायोल. ठीक है, क्या बोलेंगे? इथेन 1,2 डायोल. वेरी गुड. इथेन 1,2 डायोल. इथेन 1,2 डायोल. दैट इज द आयुपैक नेम. ठीक है, इथेन 1,2 डायोल. सर रिएक्ट प्रोडक्ट का नाम है ना सर? ये प्रोडक्ट का नाम. करेक्ट है, प्रोडक्ट का नाम आयुपैक नेम. ठीक है, इथेन 1,2 डायोल. रुचित, you are in this session, right? रुचित,
Ruchit, can you hear me? Ruchit, can you hear me? Ruchit Gohil, can you hear me? आवाज आ रही है मेरी? रुचित, हेलो सर। लेक्चर में है तू? हेलो। यस। हाँ क्या पढ़ा है मैंने अभी लास्ट, बता मुझे। सर, अभी मुझे पता नहीं, कॉल आया था। अर्जेंट कॉल था? यस सर, स्कूल से, कॉलेज से। कॉलेज से था? How can you take call in between lectures, Ruchit? लेक्चर चालू है, लेक्चर के बीच में कॉल कैसे ले रहा है तू? सॉरी सर। Amazing, एकदम amazing. It is really surprising how you people react and how you people behave in the lectures. लेक्चर चालू है, आप आराम से मोबाइल पे कॉल्स ले रहे हो, रिलैक्स होके बातें कर रहे हो। आपका नाम मैंने रुचित मैंने कम से कम कितनी बार बुलाया? 4 से 5 बार बुलाया। Then you heard me. Now so you have no idea about this reaction. Absolutely no idea. If in case suppose ऐसा चालू हो कि रिएक्शन का रिपीटेशन चालू है, then you can pick up the call. कैमरा ऑन है, you are on phone and lecture is going on. ठीक है, ओके चलो स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस डाउन। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, सो नेक्स्ट रिएक्शन विल बी प्रोपीन के साथ। प्रोपीन, नेक्स्ट रिएक्शन विल बी विथ प्रोपीन। रुचित, यू कैन नोट डाउन द रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन वुड बी प्रोपीन। एनी आइडिया? ये हमने ई क्यों रखा स्टूडेंट्स, चेक करो। ये वाला ई मैंने निकाला नहीं, चलिए अपन ई निकाल देते हैं ना, है ना, बट यहाँ पे मैंने ई रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं रिमूव किया? बिकॉज ई के बाद जो अल्फाबेट है इट इज नॉट अ वोवल। ई के बाद क्या आता है हमको चेक करो। ई के बाद क्या आता है, नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? डी, एंड डी इज नॉट अ वोवल। D is not a vowel, therefore you can keep this E. Okay students, if you have ethanol, suppose if we had ethanol, then ethanol में E के बाद directly O आता था। Number doesn't matter. Suppose मैं बोलता हूँ पार्श्व को, मैं बोलता हूँ ब्यूटान 2-ol, ब्यूटान 2-ol, so E रखेगा क्या वो पार्श्व से? No. Why? Because अगर हमने E रखा, बाद में उसके बाजू में 2 है, 2 डजंट मैटर। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? O। दो वोवल्स एक साथ नहीं हो सकते, समझ में आया? Therefore he will have to remove that E. But in this case, especially in this reaction, every time you will have to maintain this E. So if possible, reaction के टाइटल के नीचे जाओ, रिएक्शन का जो आपने टाइटल लिखा है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, वहां पे go and write a comment over there. In the IUPAC name of product, maintain E of alkane. In the IUPAC name of product, maintain E of alkane. In the IUPAC name of product, maintain E of alkane. आर्यन सावंत नोट डाउन किया? In the IUPAC, maintain E of alkane. हाँ सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। शुड वी मूव अहेड स्टूडेंट्स? प्रोपीन बना लिया आपने? प्रोपीन बना लिया सबने? सो प्रोपीन प्लस H2O प्लस O, एरो पे यू विल हैव टू राइट कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। आपका प्रोडक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और प्रोपेन विथ E, प्रोपेन 1,2 डायोल। राइट है, चेक करो। Because you start counting from the end, from where OH is
closest. So जहां भी OH नजदीक है उसी एंड से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे. Every time you'll get propane 1,2 diol, 1,2 diol, 1,2 diol. Correct है? Correct है students? Any difficulty in this? Any difficulty in this? एक और ट्राई करें, एक और ट्राई करें रिएक्टेंट. Yes. चलो प्लीज ट्राई दिस विद आइसोब्यूटिलीन. आइसोब्यूटिलीन ट्राई करो, आइसोब्यूटिलीन के साथ सर ये ट्राई करो. प्रोपेन का प्रोडक्ट नहीं समझा. प्रोपेन का प्रोडक्ट नहीं समझा, ठीक है कोई बात नहीं. प्रोपीन बना के दिखाता हूं मैं, चलो प्रोपीन बना के दिखाता हूं. ठीक है, ये रहा मेरा CH3, ये रहा मेरा CH, डबल बॉन्ड CH2. ओके, दिस इज माय प्रोपीन. करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है. जस्ट रिमूव डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, रेस्ट विल बी सेम. सो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2. ये क्लियर है? इतना क्लियर है? नाउ द कार्बन्स हाँ सर. which were in the double bond. अपन हेलोजिनेशन कैसे करते थे श्रेया? हेलोजिनेशन में क्या करती थी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को Cl दे देते थे, है ना. तो यहाँ पे क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH देना है. OH दे देना है बस. ये देख सर डबल बॉन्ड मैंने फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे लगाया तो चलेगा? हाँ कहीं भी चलेगा, जहाँ डबल बॉन्ड लगाया है. 3 ही तो कार्बन है, जहाँ भी डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट सेकंड वही बन जाएंगे. हाँ ठीक करेक्ट है है ना? करेक्ट है आर्यन? शाबाश. ओके, सो इन दिस केस आल्सो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे भी क्या होगा देखो, गलती से भी आप ऐसे मत काउंटिंग करना कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये? क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये? बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द एंड फ्रॉम वेयर OH इज क्लोजेस्ट, है ना. तो अपना काउंटिंग अपना कैसे होगा, ऐसे 1 2 3. Okay students, so this is propane 1,2 diol. Clear? किसी को डाउट है इसमें? Anybody has any doubt? शाबाश, चलो let us go ahead. आइसोब्यूटिलीन कर लें एक बार स्टूडेंट्स, आइसोब्यूटिलीन कर लें एक बार. CH2 डबल बॉन्ड C CH3 and CH3. ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, H2O plus O and then arrow पे alkaline, cold and alkaline KMnO4. क्या डालेंगे, cold and alkaline KMnO4, cold and alkaline KMnO4. ठीक है, चलो. So I'll write the product in this pattern students. CH2 CH3 CH3 and then यहाँ पे एक आएगा OH and यहाँ पे एक आएगा OH. बात खत्म. That's it. So isobutylene glycol बोल सकते हो आप इसको, और else इसका आयुपैक नेम देकर बताओ मुझे प्लीज. आयुपैक नेम चेक करो स्टूडेंट्स, ट्राई करो आयुपैक नेम, ट्राई करो जल्दी जल्दी से आयुपैक. सर 2-methyl propene. रॉन्ग है, आयुपैक नेम रॉन्ग है. हाँ बोल बोल बोल, क्या बोल रहा था आयुपैक नेम, क्या बोल रहा था? सर 2-methyl propene. 2-methyl आगे प्रोपीन सर. नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट का आयुपैक नेम, प्रोडक्ट का. 2-methyl propene 1,2 diol. 2-methyl प्रोपीन की प्रोपेन. हाँ सर, प्रोपेन. 2-methyl propane 1,2 diol is right answer. Well done. तो मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा है. Yes, same है, correct है, शाबाश. Well done आशना. 2-methyl propane 1,2 diol. Well done students, well done. धनश्री समझ में आ रहा है सब? नेमिंग कर पा रही है? नेमिंग? हाँ सर. हाँ, तो मुझे बताते जा, नेमिंग जैसी कर पा रही मुझे नाम बोलते जा. ठीक है, मानसवी you also keep on replying with the names. ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है, नेमिंग आ रहा है, आप मुझे भी बताते रहो आपको नेमिंग आ रहा है. आराम से बैठो मत, मुझे बताते रहो. अगर नेमिंग नहीं आ रहा है वो भी मुझे बताओ, नेमिंग आ रहा है तो भी मुझे बताओ. सर
हाँ बोल पार्श्व रिएक्टेंट का कॉमन में आइसोब्यूटिलीन होगा कि आइसोप्रोपिलीन? आइसोब्यूटिलीन बिकॉज टोटल 4 कार्बन्स आते हैं। तो मतलब एक तो ब्रांच है ना? करेक्ट है। कॉमन में अपन क्या करते हैं, पार्श्व सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं, याद है? हाँ कॉमन कंफ्यूज होता है। आइसोब्यूटिलीन। और सर आयुपैक 2 मिथाइल प्रोपीन ना? 2 मिथाइल प्रोपोनिन या फिर 2 मिथाइल प्रोपीन दोनों चलेगा, राइट है। बट 1 डालने की आदत डाल ले श्रेया, क्योंकि 1 नहीं डाला ना यहाँ पे, Okay, तो sir. यहाँ पे तू बच जाएगी। बट जैसे मैं ब्यूटीन चेन लेता हूँ, चेन को अगर लंबा करूंगा तब अगर नंबर डालना भूल गई तो गया, मार्क्स गया। सो ऑलवेज डबल बॉन्ड का पोजीशन बोलने का ही बोलने का, इवन दो इफ इट इज ऑन 1। हाँ सर। आर्यन एनी डाउट? नो सर। ओके शाबाश। ऋत्विक, व्हाट अबाउट यू? सब समझ में आ रहा है ऋत्विक? यस सर। वेरी गुड। मुझे भी बताते रहना आपको सब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मुझे आपके मैसेज आने चाहिए फटाफट से कि इसका आयु पैक ये है, इसका आयु पैक ये है। सो यू नेवर नो कि व्हेन योर मिस्टेक गेट्स कॉट एंड देन आपको मैं पढ़ा पाऊंगा। जब आपका मिस्टेक मैंने पकड़ लिया तो मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा। और आपका मिस्टेक ही मैं नहीं पकड़ पाया तो मैं आपको करेक्ट कैसे करूंगा, है ना? तो मैं आपको इम्प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप आंसर्स देते रहो, अपने मिस्टेक्स बताते रहो कि सर मैंने तो ये गलती कर दी, मुझे बताओ मेरी गलती कैसे हो गई। आदित्य बोल रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1,2 डायोल, मुझे तो नहीं आया, मुझे आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2,3 डायोल। तो क्या करूं मैं, क्यों मेरा ये आंसर ये रॉन्ग क्यों आया, अलग आंसर क्यों आया? तो ऐसा मुझे पूछते रहो आप, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन नाउ। Next reaction is oxidation reaction. Next reaction is oxidation reaction. Oxidation reaction कैसे करूंगा? By using alkaline नहीं, acidic KMnO4। अभी आपने क्या यूज किया? Alkaline KMnO4 यूज किया, करेक्ट है? अब आप यूज करोगे acidic KMnO4। Let us start, है ना? स्टार्ट कर दें स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर दें। So I'll write over here oxidation of alkenes, ठीक है? Oxidation of alkenes. Suyash, Tisha. यस सर। So ये तेरा कैमरा ऑन है बट हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। सर ऑन है सर, रिजॉइन करूं? हाँ रिजॉइन कर ले, कर ले। निवान पंचाल, कौन कौन निवान पंचाल को देख पा रहा है? रेज योर हैंड। निवान पंचाल, कैन यू हियर मी? सो यस, अब दिख रहा है। तो निवान तू कहाँ चला गया था? निवान पंचाल, हाँ हाँ कहाँ गायब हो गया था? दिखाई नहीं दे रहा था हमको तो। नाउ आई कैन सी। नहीं सर, मैं वॉशरूम करने गया था तो मैंने कैमरा बंद कर गया था मैं। चलो, oxidation of alkene students, first look at the reaction. I want to specify certain rules for the reaction, but पहले मैं एक reaction दिखा देता हूँ and then आपको rules समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी आप कुछ लिखो मत, पहले reaction समझ लो, then इस टाइटल के नीचे पहले rules लिखेंगे, ठीक है? And then we will do the reactions. अभी मैं अगर आपको directly rules बताऊं तो आपको समझ नहीं आया, तो पहले others can hear me? Yes, sir. Yes sir. Okay, please check your network once. चलो ये रहा मेरा अल्कीन स्टूडेंट्स, अल्कीन ले लूं मैं। So I'll take CH3, I'll take CH double bond CH2. Okay students, CH3 CH double bond CH2, इसका नाम क्या है? कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, जल्दी बताओ। कॉमन नेम क्या है इसका? Propene. प्रोपिलीन। कॉमन नेम इज प्रोपिलीन। आयु पैक क्या बोलोगे?
Propionine. Propionine. Well done. Propionine. Shabash. Now on my arrow I will write acidic KMNO4. फर्क समझ में आया? लास्ट रिएक्शन से फर्क समझ में आया? लास्ट रिएक्शन में we Yes, had alkaline KMNO4. यहाँ पे you have acidic KMNO4. क्या बात है? Acidic KMNO4. अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्लीज फोकस ओवर हियर. प्लीज फोकस ओवर हियर. रूल नंबर 1 आ रहा है. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्शन और आपको रूल बताऊंगा. आप सिर्फ रूल लिखोगे टाइटल के नीचे, रिएक्शन नहीं लिखोगे अभी के लिए. सो रूल नंबर 1, प्लीज राइट डाउन रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 इज रिलेटेड टू दिस पार्ट ओवर हियर स्टूडेंट्स. इस कार्बन के रिलेटेड. ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन रूल नंबर 1. कुछ भी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना, जस्ट राइट द रूल. रूल नंबर 1, if doubly bonded carbon has one hydrogen, if doubly bonded carbon has one hydrogen, if doubly bonded carbon has one hydrogen, it is oxidized to if doubly bonded carbon has one hydrogen, it is oxidized to carboxylic acid. It is oxidized to carboxylic acid. If doubly bonded carbon has one hydrogen, it is oxidized to carboxylic acid. Is this clear? Is this clear, students? yes, sir. शाबाश. चलो चेक करें, हमने सही बनाया कि गलत बनाया, चेक करें. ये रूल को अप्लाई करके दिखा दूं आपको. ये देखो, ऑक्सीडेशन में यू विल हैव टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड. ये ना टुकड़े टुकड़े कर देने हैं आपको, दो पार्ट में डिवाइड करना है. ओजोनोलिसिस याद आ रहा है, जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे एक अल्कीन को दो पार्ट में आपको तोड़ देना है. तो आंसर चेक करो मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स. आंसर चेक करो. आंसर विल बी CH3. ठीक है, आंसर विल बी CH3 डैश C एंड H. चेक करो मैंने C और H के बीच में कितना डिफरेंस छोड़ दिया, कितना डिस्टेंस छोड़ दिया. चेक करो, C एंड H के बीच में कितना डिस्टेंस छोड़ दिया. अब इन दोनों के बीच में आप क्या लिखोगे? O. बात खत्म. चेक करो, CH3COOH, CH3COOH. समझा आपका रूल? चेक करो. अब आपका रूल रीड करो, आपका रूल रीड करो क्या बोलता है. यही सेम चीज बोल रहा है क्या वो? तो जहां Yes, आपने sir. रूल लिखा है, जहां आपने रूल लिखा है, आपके रूल के नीचे नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख दो. देखो, CH एरो दिखा के लिख दो, COOH. इफ पॉसिबल यूज डिफरेंट कलर्स. जैसे मैंने यूज किया ब्लैक एंड रेड, वैसे आप भी यूज करो इफ पॉसिबल. समझा? तो आपको ये एक इशारा मिल गया कि जो CH होगा वो बन जाएगा COOH. ऑक्सीडेशन हो गया. अग्री कर रहे हो ना? ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन हमने ऐड किया स्टूडेंट्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. क्लियर है? चलो नेक्स्ट रूल लिखेंगे. अब नेक्स्ट रूल लिख लो. रूल नंबर 2. डू नॉट ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर. रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स. रूल नंबर 2. if doubly bonded carbon has two hydrogens instead of one. मत लिखो, just लिखो just two hydrogens. If doubly bonded carbon has two hydrogens, if doubly bonded carbon has two hydrogens, just a second. चलो
if doubly bonded carbon has two hydrogens, it is oxidized to CO2 plus H2O. It is oxidized to CO2 plus H2O. Oxidized to CO2 plus H2O. समझ में आया? तो अब आप रूल के नीचे क्या लिखोगे? ये देखो, अपन ने अभी भी इसकी बात की स्टूडेंट्स, अपन ने अभी भी इसकी बात की। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जो CH2 है Yes, अपने sir. पास, इसको हमने क्या बना दिया? CO2 प्लस वाटर। सो टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिल गए आपको, CH3COH प्लस CO2 प्लस वाटर। क्लियर है? आपके रूल के नीचे आप क्या लिखोगे? ऐसा कुछ लिखोगे स्टूडेंट्स। ये देखो, ऐसा कुछ लिखो आप, CH2 is converted to CO2 plus H2O। ठीक है, ये आपके रूल के नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब आपका थर्ड रूल आने वाला है, रूल 3 आने वाला है, बट उसके पहले आप रूल 3 के लिए स्पेस छोड़ के ये रिएक्शन जो हमने स्क्रीन पे लिखा है, इस रिएक्शन को लिख लो पूरा। चलो, रूल 3 के लिए स्पेस छोड़ दो एंड राइट डाउन दिस रिएक्शन नाउ, कॉपी डाउन दिस रिएक्शन नाउ। फिर इसका क्या? इसका नाम इथेनिक एसिड होगा ना सर, प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का नाम है एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम लिख दूं मैं। कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। आयु पैक आपने नहीं पढ़ा होगा, आयु पैक आप बाद में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में। इथेनोइक एसिड स्टूडेंट्स, आयु पैक इज, आई राइट आयु पैक ओवर हियर। ठीक है, इसका आयु पैक यहाँ लिखता हूँ। आयु पैक इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो डन। एग्जाम्पल लूं मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे अपन रूल नंबर 3 कवर करेंगे। चलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, पूरा हटा दिया मैंने, ये पूरा हटा दिया, ये पूरा हटा दिया। सो क्वेश्चन इज CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, चलो ये रिएक्टेंट लिख लो फटाफट से, ये रिएक्टेंट लिख लो फटाफट से। एंड देन एरो पे आई विल हैव एसिडिक
KMnO4। अच्छा, एक्चुअली KMnO4 को एक और तरीका आइडेंटिफाई करने का या रिप्रेजेंट करने का, आई शुड से there is one more way to represent acidic KMnO4. They will write KMnO4 comma H plus. KMnO4 comma H plus. H plus मतलब क्या? H plus is donated by acid ना? HCl suppose acid है तो HCl आपको क्या देता है? H plus NCl minus. So ये H plus जो देता है उसको अपन एसिड बोलते हैं। Therefore acidic KMnO4 हम एक और तरीके से लिख सकते हैं KMnO4 comma H plus। तो वो भी आप लिख के ले लो अपने बुक में। Acidic KMnO4 या पूरे वर्ड्स में लिख के आएगा acidic KMnO4 या just they will write H plus comma KMnO4। तो you will have to understand कि this is acidic KMnO4। Okay students, चलो स्टार्ट करूं मैं। So rule number 3 लिख लो फटाफट से। Rule number 3, if doubly bonded carbon has no H or no hydrogen, if doubly bonded carbon has no hydrogen, it is oxidized to ketone group. It is oxidized to ketone group, that is C double bond O। याद आ रहा है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप याद आ रहा है स्टूडेंट्स? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ये देखो ये वाला डबल बॉन्ड जो है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जो है, इसके पास एक भी H नहीं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसका चेक करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले डबल बॉन्ड कहां दिख रहा है, वहां ध्यान दो। ये देखो यहां से आपको मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहां से आपका मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डबल बॉन्ड को कट कर दो बस, तो मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब पहले पार्ट का प्रोडक्ट बनाते हैं। सो CH3 यहां तक तो सब सेम है। देन ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। दैट्स इट, कीटोन बन गया स्टूडेंट्स। प्रोपैन 2O, रिमेंबर प्रोपैन 2O हमने बनाया था, कीटोन बन गया। चेक करो, इसका एक और नाम है, कॉमन नेम इज एसीटोन। एसीटोन गर्ल्स को पता होगा, एसीटोन का क्या यूज है, नेल पेंट निकालने में काम आता है एसीटोन। एसीटोन को अगर आप बॉटल खुला करके रख दोगे तो उसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा और मस्त आपका वाटर वापस से रिफिल हो जाएगा। चेक किया कभी बॉटल खुला छोड़ा है? इट इज वॉलेटाइल, उड़ जाता है। हाँ उड़ जाता है। वेरी गुड, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने जो जहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है उसके हिसाब से मैं अब एक और प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? डबली बॉन्ड कार्बन के पास एक H दिख रहा है मुझे, देखो स्टूडेंट्स दूसरी तरफ, COOH। वेरी गुड, COH। सो दिस इज हाउ आई विल राइट। इथेनॉइक एसिड बनेगा। शाबाश, वेल डन। सो C पहले लिख दो, H पहले लिख दो, देन COOH अपन ने दे दिया, करेक्ट है, COOH हमने लिख दिया। अब इसी CH को कौन अटैच्ड है चेक करो, CH3 अटैच्ड है, हो गया। सो पहले COH लिखो, इस पे जो भी लोग अटैच्ड है नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, इस तरह से बाजू में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट्स। सर आपने फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम क्या बोला था? पहले प्रोडक्ट का नाम मैंने बोला था एसीटोन। ठीक है, लिख दो नाम यहाँ पे, ये देखो इसका मैंने नाम बोला था, कॉमन नेम है इसका एसीटोन, एंड IUPAC है इसका प्रोपैन 2O। अंडरस्टूड, प्रोपैन 2O। सर रिएक्टेंट का नेम है 2-methyl butane 2-ene। क्या क्या क्या? सर रिएक्टेंट का नेम 2-methyl butane, करेक्ट है, 2-methyl butane, 2-methyl butane।
सर सेकंड प्रोडक्ट का नाम होगा इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड ना? इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड। ओके, चलो डन स्टूडेंट्स। नाउ आपको मैं ऑक्सीडेशन कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, ट्राई टू सॉल्व देम। ऑक्सीडेशन कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, ट्राई टू सॉल्व देम। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 C2H5। नेमिंग करने का भी ट्राई करो, ठीक है। CH3 दिस इज फर्स्ट एंड देन सेकंड होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। So these are the two reactants. इनका आपको ऑक्सीडेशन करना है with the help of acidic KMnO4. Once you're done, you have to raise your hand. Sir, send the answer in the chat. सर Yes. बोलो बोलो, कुछ डाउट है? आए तो रुक जा, आंसर चेक करते हैं, ठीक है। सर मुझे नहीं आया, आप आंसर सॉल्व करोगे ना? हाँ, अपन सॉल्व करेंगे ना स्क्रीन पे।
Sir, I can't understand the reaction. Sir, please explain again. हाँ, नो प्रॉब्लम सोम, नो प्रॉब्लम, वापस करेंगे रिएक्शन को, ठीक है। चलो, सबका हो गया। सो हम तीनों रूल्स लिखे, रुचित तीनों रूल लिखा है, ओके चलो तीनों रूल्स को फॉलो करते हैं। लेट अस सी इफ वी कैन गेट दिस रिएक्शन डन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके आगे चलूंगा एंड आई विल राइट एसिडिक KMnO4, क्या लिखूंगा, एसिडिक KMnO4, क्लियर। अब क्या करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो पहले। तो हमको पता है कि ये देखिए यहां से मॉलिक्यूल डिवाइड होने वाला है, क्लियर है, मॉलिक्यूल यहां से डिवाइड होने वाला है। अब क्या बनेगा, फॉर दैट यू विल हैव टू चेक योर रूल्स। तो सबसे पहले मेरे पास ये डबल बॉन्ड कार्बन, जिसके पास एक भी H नहीं है, तो ऐसे डबल बॉन्ड कार्बन का क्या रूल है बताओ। इफ डबल बॉन्ड कार्बन हैज नो H, देन क्या रूल है, कीटोन, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है वो, करेक्ट है। रूल नंबर 3 चेक करो, रूल नंबर 3 सो हम दिख रहा है रूल नंबर 3। Can you tell me rule number 3 again, sir? Okay, rule number 3 is if doubly bonded carbon, if doubly bonded carbon has no hydrogen, if doubly bonded carbon has no hydrogen, then it is converted to C double bond O, क्लियर है। Yes, sir. हाँ, अब चेक करते हैं, चल। सो ये जो पार्ट है इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, सो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C C2H5, इतना क्लियर, इतना क्लियर सोहम। Yes, sir. अब क्या ऐड कर, इसमें तो एक भी H नहीं है, तो मैं क्या ऐड करूंगा, C डबल बॉन्ड O, हो गया, दैट्स इट। समझा रुचित, क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आ जाए, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, चलो। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, उस तरफ वाला कार्बन को देखो, चलो लेट अस सी दिस कार्बन नाउ। दिस कार्बन आल्सो हैव 0 हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट राइट डाउन द स्ट्रक्चर एज इट इज, CH3 CH3 and you will write double bond O, okay। You can write double bond over here also, ये भी चलेगा, this is also right, उसी कार्बन पे आना चाहिए बस, that's it। नेमिंग क्या स्टूडेंट्स चेक करो, ब्यूटान 2-on and propane 2-on, butane 2-on and propane 2-on, these two are the names, butane 2-on and propane 2-on, ठीक है, ओके। नेक्स्ट CH3 सर CH2, रिएक्टेंट का नाम, रिएक्टेंट का नाम 1 2 तो 3 4 5 6 1 2 3 तो मैंने लिखा है, मैं बोलूं, हाँ बोल। 2,3 डाइमिथाइल पेंट 1-इन। 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2-इन आएगा, 2,3 ओके डाइमिथाइल सर, पेंट 2-इन, हाँ बिकॉज हाँ सर, काउंटिंग वो ऊपर से 2 होता है ना। कार्बन है। हाँ, 2,3 तूने नंबरिंग करेक्ट दिया है, सो 2 and 3 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, सो 2,3 पेंट 2-इन हाँ आएगा। सर। शाबाश, वेल डन, वेल डन। सर एक मिनट, लास्ट पेज बताओ ना, एक मिनट। ये सर इसमें सेकेंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है ना? सेकेंड कार्बन पे इथाइल अटैच्ड है, कौन सा सेकेंड कार्बन, हाँ ये देखिए देखिए, तो नाम 2 इथाइल 3 मिथाइल प्रोप 2-इन होगा ना? नहीं नहीं रॉन्ग, लेकिन सर वहां से हमारा लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट होगा ना सर।
दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। ईशा, क्या लॉन्गेस्ट चेन रॉन्ग है? सर आई टुक हॉरिजॉन्टल। और एल्स, हाँ तो वो रॉन्ग हो गया अपना। अपन ऐसे भी जा सकते थे दिशा, ये भी राइट होता अपना, ये भी राइट हो जाता। हाँ सर, मैंने ऐसे ही लिया। हाँ, शाबाश। अभी मैं दूसरा वाला करता हूं आपके साथ। एक बार चेक करो रिएक्टेंट मैंने करेक्ट लिखा है क्या स्टूडेंट्स? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सोहम एंड रुचित है ना, सोहम एंड रुचित। अब ट्राई करो, देखो आप लोगों को आता है क्या ये वाला। पहला काम क्या करेंगे हम, अल्कीन को, हमको पता है अल्कीन को अपने दो पार्ट में डिवाइड करना है, सो दो प्रोडक्ट्स बनने वाले कम से कम। डबली बॉन्ड कार्बन को देखते हैं चलो। सो रूल के हिसाब से डबली बॉन्ड कार्बन के पास कितना है? एक H है, मतलब ये क्या बन जाएगा फ्यूचर में? COOH बन जाएगा। सो मेरा पहला प्रोडक्ट आना चाहिए था CH3 CH2 CH, ठीक है, CH एंड बीच में आएगा OO। प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड, प्रोपेनोइक एसिड, वेरी गुड। प्रोपेनोइक एसिड, कैसे नाम आया प्रोपेनोइक एसिड? 1 2 3। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़े। रूल के हिसाब से इफ यू हैव अ डबल बॉन्ड कार्बन व्हिच हैज 2 हाइड्रोजन्स, डबल बॉन्ड कार्बन के पास अगर 2 हाइड्रोजन्स है तो हम क्या करेंगे उसको? CO2 and water. क्या बात है, क्या बात है, वेल डन वेल डन। वी विल कन्वर्ट इट इनटू CO2 एंड वाटर। खत्म, करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है अभी? शाबाश। आदित्य माइक म्यूट कर ले। Okay students, clear till here? So if you go into your textbook now, तो आपका मैंने अल्कीन सेक्शन खत्म कर दिया है, ठीक है? अल्कीन सेक्शन इज ओवर कंप्लीट। हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा? व्हाट अबाउट अदर्स? आपको आवाज क्लियरली आ रहा है? हाँ सर, बीच बीच में हो रहा है। ओके, इमीडिएटली स्टॉप मी। जैसे आवाज ब्रेक हो रहा है प्लीज स्टॉप मी इमीडिएटली एंड लेट मी नो, ठीक है? इज इट फाइन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. You can check students, आपका टेक्स्ट बुक चेक कर लो। अल्कीन सेक्शन पूरा खत्म हो गया। यूजेस ऑफ अल्कीन यू हैव टू डू ऑन योर ओन, आपको लर्न करना है यूजेस, ठीक है? सो इफ आई टेल यू पेज नंबर, तो हम चले गए हैं पेज नंबर 244 नहीं 245 246 का लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 246 लेफ्ट हैंड साइड। सो अल्कीन सेक्शन ओवर। नाउ ओनली अल्काइंस बाकी है, सिर्फ अल्काइन बाकी है। सो आई वांट यू पीपल quickly revise alkene section, alkene का synthesis, reactions सारे आपको रिवाइज करने हैं अभी। alkene का synthesis and alkene के reactions सारे अभी आपको रिवाइज करने हैं। and I want to see how many of you can tell me everything orally, सारे reactions and सारे synthesis आज जो किए वो आप देख के बोल सकते हो, या फिर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा तो वो स्क्रीन पे आप डिटेल्स देख के मुझे बता पाओगे। rest everything you can tell me orally। चलो फटाफट से रिवीजन करो and raise your hand once you are done। at least अगर 3 बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया तो हम स्टार्ट कर देंगे रिवीजन, ठीक है? at least 3 बच्चों के हाथ जैसे ऊपर आ गए, we will start with revision। चलो जल्दी जल्दी करो प्लीज। alkene you have to revise everything, alkene का synthesis as well as reaction। आप किस ऑर्डर में बोल रहे हो आपकी मर्जी, ठीक है? पहले रिएक्शन बोलोगे या पहले
You have to go till the reactions part. Okay, so start. Okay, sir. So now let's begin with the synthesis of alkene. So in the synthesis of alkene, we can go through two processes, that is elimination process and addition process. So in the elimination process, let's begin with the first type of synthesis, that is dehydration of alkyl halide. So let's begin. So here in this, we're gonna take an alkyl halide group. We're gonna react it in the presence of KOH alcoholic, and we get alkene as a product along with alkene as a product along with KX, that is X belongs to an halo group. So let's, sir, can I take an example to explain it? Go ahead. Okay, sir. So I would like to take butene as my example. So sorry, as my alkene. So I will take 2-chlorobutane as an example. I will react it with KOH alcoholic to get butene. So also keep in mind, if our reactant side has more than 3 carbons, then we will get 2 products. Major butene will be my major, has more number of alkyl groups in it, and butanene will be my minor product, has less number of alkyl groups in it. So let's begin with the second type of reaction, that is 1 minute, sir. Just, sir, I'm getting a call. Just a sec. So let's begin the second type of synthesis, the aluminum question, that is dehalogenation of alcohol. So let's begin with it. So, Dehydration, na? yeah, Dehydration. so, sorry, dehydration. Sorry, sir. Dehydration of alcohol. So let's begin with this. So in the reactant side, we're gonna take an alcohol. We will react it. Will react in the presence of H2SO4, which is our dehydrating reagent. So there are some conditions for choosing our reagent, that is dehydrating reagent H2SO4. Let's go through the conditions. So conditions that if our alcohol group is present on the primary carbon, that is, it is present on the terminal points of the carbon, then we will take our reagent has 75% of H2SO4 along with 473 Kelvin of heat, but has, if our alcohol group is present on the secondary carbon, that is the carbon on which our alcohol is present is attached to 2 more carbons, then we will take 60% of H2SO4 along with 373 Kelvin of heat. While if our alcohol group is present to the tertiary carbon, that is the alcohol group attached to the carbon is attached to more 3 carbons, then we will take our reagent has 20% of H2SO4 along with 363 Kelvin of heat. So here in this reaction, we will take an alcohol as a reactant. We're going to react it with dehydrating reagent H2SO4 on the basis of the alcohol group present on the carbon. So then we'll get alkene as a product along with a byproduct water. So let's understand this reaction with an example. So here I will take sec-butyl alcohol as my example. I will react it with, I will take reagent has 60% of H2SO4 along with 373 Kelvin. Note that I took 60% of H2SO4 along with 373 Kelvin because here my OH group is attached to secondary carbon. So let's begin. So here I will get 2 products, again major and minor according to the Stejnev rule, and I will decide, that is butene and butanene as my products, and I will decide butene as my major product, as it has more number of alkyl groups in it, and butanene has my minor product, as it has less number of alkyl group in it. So let's begin with the third type of elimination process reaction synthesis, that is
dehydrohalogenation of Wissens dialite. First, let's understand the term that is dehydrohalogenation of Wissens dialite. Here, dehydrohalogenation means elimination of halogen and vicinal dihalide. Vicinal means neighboring and dihalide means two halogens. So here in this means that we're gonna eliminate two halogens from the reactant side to get alkene as a product. So let's begin. If here in the reactant side I will have vicinal dihalide which is attached to the adjacent carbons along in the presence of Zn, that is zinc, along with and also some amount of heat will be supplied to it, and I will get my product as alkene along with Znx. Here X belongs to my halo group. One compound dichloropentane has my reactant. I will react it with zinc and also some amount of heat will be supplied to it, and I will get my product has pent1ene. So and also that is ZnCl2. As I said, Zn will take my halo groups together and it will become ZnCl2. So let's begin with the addition process. Here in addition process we have two types. Before going to it, let's study about geometrical isomers. So geometrical isomers can be divided into two types, that is cis and trans. Note that if the hydrogens of the doubly bonded carbons are on the same side, then we will add the prefix this beside the alkane has cis, or else if the hydrogens of the doubly bonded carbons are on the opposite sides, then we will take the prefix as trans. So let's begin with the first type of addition synthesis. So let's begin with it. So here I will take an alkyne. I will react it with Lindlar's catalyst. So Lindlar's catalyst is a mixture of आवाज म्यूट भी आदित्य माइक आदित्य माइक आदित्य माइक म्यूट पे है. Oh, sorry, sir. Here, so let's begin with the first type of method, that is, sir, I told about geometrical isomers. Okay. Yes, you said about cis. First, let's begin with the first type of that is addition process. Here, I will take an alkyne. I will react it with Lindlar's catalyst. So Lindlar's catalyst is a mixture of H2, palladized charcoal, quinoline, which is a heterocyclic compound, and also instead of quinoline, you can use some sulfur compounds. So here I will get alkene, but note that the alkene which I use will have prefix cis, because in the alkene the carbons attached to doubly bonded carbons are on the same sides. So hence I will use cis as my prefix. But in the second type of addition reaction, I will take my product similarly, but that is alkyne, but I will use reagent different, that is sodium along with liquid ammonia. Here in this I will get the product as alkene, but I will use different prefix as trans, because here in this case I will have my hydrogens on the opposite sides. Hence I will use cis trans as my prefix over here. So let's understand this with an example. Here I will take but2ine as my reactant. I will react it with Lindlar's catalyst, and here on the product side I will get cis but2ene. Note here I have used cis here because I'm reacting it with in the presence of Lindlar's catalyst. If I react it in the presence of sodium and liquid ammonia, I will get my prefix as trans. So with this I complete synthesis of alkene. Let's go to reactions. Aditya, reactions bata. Tisha, start the reactions. Tisha, chemical reactions of alkenes.
Yes, sir. Chemical reactions of alkene. The first one is hydrogenation. In this, alkene plus H2 in presence of NiPT-PD at heat or at room temperature will give us alkane. In this reaction, the double bond of alkene is reduced to single bond, and the hydrogen get attached to both the doubly bonded carbon atom. The second reaction is halogenation. In this, alkene plus halogen in presence of CCl4 will give us dihalide alkene. Here, halogen group get attached to both the doubly bonded carbon atom and forms the single bond between the carbon atom and gives us alkane. The third reaction is hydrohalogenation. This can be performed by in symmetrical alkene or asymmetrical alkene. In symmetrical alkene, the double bond is reduced to single bond and hydrogen and halide get attached to doubly bonded carbon. Since the alkene is symmetrical, the hydrogen and halogen can be attached to any of the doubly bonded carbon atom. Then next for asymmetrical alkene, we have Markovnikov's reaction or anti-Markovnikov. In Markovnikov reaction, alkene plus HBr or any of the halogen will give us alkyl halide, and here we will get major or minor product. In this reaction, first we'll have to observe both the carbon atom, and H will get attached to carbon with greater number of hydrogen, and Br will get attached to remaining carbon. This will form our major product. And for minor product, the position of H and Br will get interchanged. Then anti-Markovnikov. This reaction is performed in presence of benzol peroxide, and only HBr can be used for this. It is exactly opposite to Markovnikov's reaction. In the major product, Br would be attached to the carbon with greater number of hydrogen, and hydrogen would be attached to other of the doubly bonded carbon. The next method is addition of sulfuric acid. In this reaction, alkene plus cold and conc sulfuric acid will give us alkyl hydrogen sulfate. This reaction takes place in accordance with Markovnikov, that hydrogen and OSO3H will be attached to other carbon atom. Further, the alkyl sulfate formed plus water will give us alkyl alcohol. The OSO3H will be replaced by OH minus ion, and it will form alcohol. While OSO3H will be given out as sulfuric acid. Then in ozonolysis of alkene plus O3 in presence of CCl4 will give us ozonide complex. Then this ozonide complex will break down into two parts, and it will either give two ketones, two aldehyde, or one ketone, one aldehyde in presence of Zn and H2O. Then next reaction is hydroboration and oxidation of alkene. In this reaction, alkene plus diborane in presence of tetrahydrofurane will give us trialkyl borane. Then again, trialkyl and borane will be break down into two parts in presence of hydrogen peroxide and base, and it will give us alcohol plus two BOH thrice. Then the next reaction is polymerization. In polymerization, alkene in presence of oxygen, heat and pressure will give us a repeating unit that will be known as polyalkene. Then the next reaction is hydrolation of alkene. In this reaction, alkene plus water plus Oxidation. Disha, hydroxylation. Hydrolation nahi, hydroxylation. Yeah, hydroxylation of alkene. In this reaction, alkene plus water plus nascent oxygen will give us ethylene, will give us alkaline glycol in presence of cold alkaline KMnO4, which is also known as Bayer's reagent, and this process is also known as Bayer's Bayer's method. And the last reaction is oxidation reaction. In this reaction,
alkene in presence of acidic KMNO4 will give us carboxylic acid, CO2 and H2O. There are three conditions in this reaction. If doubly bonded carbon is attached to if doubly bonded carbon has one hydrogen attached to it, it is oxidized to carboxylic acid, that is COOH. And the name given would be with alkyl oic acid. If doubly bonded carbon has two hydrogen, it is oxidized to CO2 and H2O, that is CH2 will give us CO2 plus H2O. And if doubly bonded carbon has no hydrogen, it is oxidized to ketone group, that is C double bond O. So all synthesis, all reactions. पेन पेपर पे लिखना, ड्राइंग पेपर ले लो या चार्ट पेपर ले लो, बुक में मत लिखना, पेन पेपर पे लिखो कलरफुल पैटर्न में, and you have to send it to me. That is your homework, students. One time, every reaction का 2 example लेना है आपको. Every reaction 2 examples you have to take. ठीक है? Synthesis plus reactions. पूरा alkene खत्म कर देना आज. Okay? That's it, students. Thank you very much. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye.